Let us discuss applications of Gauss's law. We have already discussed what Gauss's law is, what is the integral form of Gauss's law, and how Gauss's law can help in solving problems where the electric field in certain charge distribution is to be calculated. For this, we have also calculated the Coulomb's law with the help of Gauss's law, and we have made or discussed a strategy for solving other problems. Let's take an overview of that again. The strategy for solving the Gauss's law problems. First, we have to discuss the direction of electric field, determine the direction of electric field, and then we have to determine the geometry of the charge distribution. After doing both these things, we have we have to consider a Gaussian surface. That Gaussian surface must match the charge distribution. This will be the first step in our problem solving. Then the second step will be we have to evaluate the surface integral, or in other words we can say we have to calculate electric flux through the Gaussian surface. Then third step will be we have to calculate the charge inside the Gaussian surface. After doing these three steps, we will apply the Gauss's law, and then we will evaluate the value of E, or we will solve the Gauss's law for value of E. Now let us consider what will be the first problem or the first application of Gauss's law. That is a general one. We consider an infinite line of charge having a charge density of lambda. Now for this, first, let us take a look on the diagram. The diagram basically shows a section of an infinite line of charge of constant positive linear charge density. Now, first we have to remember what is charge density. Basically, charge density is a term which tells us about the charge per unit length. Considering this certain case of a infinite line of charge, our charge density will be represented by charge is a lambda, and is given by the relation lambda is equal to q per यूनिट लेंथ. अब यहाँ पर अगर हम अपनी वायर की लेंथ को एल टोटल कह देते हैं, तो आपके पास यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी लेमडा इज इक्वल टू क्यू. क्यू इज़ बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड इन दिस वायर, और लेंथ ऑफ द वायर जो है आपके पास वो हम कह रहे हैं कि एल टोटल के बराबर है. तो यहाँ पर हम लोग लेमडा की वैल्यू जो है वो लिख देंगे क्यू ओवर एल टोटल. नाउ मूविंग ऑन, हमने अपनी जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने लिए फर्स्ट स्टेप पर आना है. एंड द फर्स्ट स्टेप वाज assume or choose a Gaussian surface, a suitable Gaussian surface. तो हमारे पास ये अरेंजमेंट जो हमारे पास था, एक इन्फानाइट लाइन ऑफ चार्ज है, इसकी शेप कुछ सिलेंड्रिकल सिमेट्री है. तो हम एक ऐसी गॉसियन सरफेस लेंगे जो कि हमारी इस सिमेट्री के अकॉर्डिंग हो. तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अ गॉसियन सरफेस जो कि आपके डायग्राम्स में भी नज़र आ रही है. और ये गॉसियन सरफेस क्या है जी, बेसिकली इट्स अ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विद अ लेंथ h closed at each end by a plane cap normal to the एक्सिस. अब बेसिकली हमारे पास क्या है, हमने अपनी जो गॉसियन सरफेस कंसिडर की है दैट इज़ अ सिलेंडर. और सिलेंडर जो है आपके पास उसके दोनों एंड्स क्लोज हैं, कोई भी एंड इसका ओपन नहीं है. और इस सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पर हमारे पास जो है वो हमारी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मौजूद है. नाउ हम लोगों ने क्या करना था, अगर आपको याद हो तो वी हैव टू डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ ई.
अब इसमें अगर हम डायरेक्शन ऑफ ई को डिस्कस करें तो हम लोग अपना प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करेंगे जिसमें हमने फ्लक्स की बात की हुई है कि फ्लक्स की डायरेक्शन, फ्लक्स मैक्सिमम किस केस में होता है और फ्लक्स मिनिमम किस केस में होता है। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि फ्लक्स जो है वो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो अगर आप अपनी ये गॉसियन सरफेस देखें तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर आपके पास जो एरिया वेक्टर्स आ रहे हैं, एरिया वेक्टर्स अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये जो आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, साइड है आपके पास, यहाँ पर एरिया वेक्टर आपके पास पैरेलल आएगा टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए। और अगर आप एंड्स पर देखें या कैप्स पर बात करें तो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर आप अपना प्रीवियस नॉलेज रिवाइज करें तो उस प्रीवियस नॉलेज में ये कहता है कि अगर आपके पास ई और ए के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो है तो आपका फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम आएगा, और अगर आपके पास ई और ए वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 90 है तो आपके पास फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आएगा, यानी मिनिमम आएगा। तो इन दिस सर्टेन केस हम लोग अगर अपने फ्लक्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास कैप्स के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी, और जो साइड सरफेस है इस सरफेस के ऊपर हमारे पास जो टोटल वैल्यू ऑफ फ्लक्स आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अब अगर हम अपने सिलेंडर का एरिया कंसिडर करते हैं तो हमारे पास जो सिलेंडर का टोटल एरिया है वो आपके पास आ रहा है, यहाँ पर आपके पास लिखा गया है सर्कल, जो सिलेंडर का टोटल एरिया है दैट एरिया विल बी इक्वल टू 2πr इंटू एच। नाउ हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम कर ली, देन वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एंड देन वी हैव ऑल्सो नोटिस्ड कि हमारे पास किस साइड ऑफ द गॉसियन सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू आएगी और किस साइड पर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू नहीं आएगी। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द फ्लक्स, तो उसके लिए हम लोग अपना गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। आपका गॉसेस लॉ क्या कहता है, गॉसेस लॉ सिंपली आपके पास कह रहा है एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज, चार्ज इंक्लोज। अब हमने पीछे फ्लक्स कैलकुलेट किया है, और फ्लक्स बेसिकली आपको अगर याद हो तो फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए के। हमने कहा कि हमारे पास जो डी ए है वो अभी बराबर आया था आपके पास, अगर हम कहते हैं कि ई जो है वो एक अदद कांस्टेंट है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर जब हम कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर आपके पास कोई सरफेस है और वो सरफेस आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, आपकी गॉसियन सरफेस इक्वी डिस्टेंस पे है, एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, और यहाँ तो आपके पास जो चार्ज है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ऑन द गॉसियन सरफेस कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर भी आपके पास सिमिलर केस है, आपके पास जो सेंटर से वायर गुजर रही है और साइड पर जो आपके पास सिलेंडर है, ये जो आपकी गॉसियन सरफेस है दैट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। सो वी कैन से कि इन दिस सर्टेन केस आपके पास ई की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, और जब आपके पास ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास बाकी क्या बच गया, ये यहाँ पर आपके पास क्या है, ई इज़ कांस्टेंट, तो ई इंटेग्रल से बाहर सरफेस इंटेग्रल डी ए बाकी रह गया, और जब सरफेस इंटेग्रल डी ए बाकी रह गया तो हमने डी ए की अभी कैलकुलेशन की है। हमने कहा है कि जो टोटल एरिया है वो आपके पास 2πr इंटू एच के बराबर आता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, अपने फाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और वो क्या आएगी आपके पास, E2πr h।
और अभी हमने पीछे एक इक्वेशन लिखी थी और वो इक्वेशन हमारी कहती थी कि आपके पास जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वो बराबर है Q ओवर L टोटल के। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाह रहे थे, योर थर्ड स्टेप वाज टू कैलकुलेट द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हमारी गॉसियन सरफेस पर अब हम चलते हैं अपनी गॉसियन सरफेस पर, और गॉसियन सरफेस के अंदर हम देखते हैं कि चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस कितना है। तो जितना रीजन जितनी आपके पास आपके सिलेंडर की गॉसियन सरफेस की हाइट है उतनी ही वायर जो है वो आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड में आएगी। तो बेसिकली आप यहाँ पर एल टोटल लेंथ ऑफ द वायर की जगह अपनी गॉसियन सरफेस की लेंथ लिखेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन है दैट इक्वेशन विल बिकम lambda is equal to Q over H, as H is the height of your charge cylinder. H is the height of your Gaussian surface. तो यहाँ से आप लोग इस इक्वेशन को के लिए Q की वैल्यू को एवेलुएट कर सकते हैं एंड दैट विल बी लैम्डा इनटू H। और यही वैल्यू हमने यहाँ पर अपने गॉसेस लॉ के अंदर अप्लाई की है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा H। तो आपके पास अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपका नेक्स्ट स्टेप वाज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो ऊपर ये जो गॉसेस लॉ की हमने अभी इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एक सेक्शन ऑफ द वायर ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आएगी। Now moving on towards our second application of Gauss's law, and the second application of Gauss's law is an infinite sheet of charge. What is the अब हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं, basically our first application, in this first application as we have discussed an infinite line of charge. Now we are going to consider a different geometry which is an infinite sheet of charge. अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो फिगर है, फर्स्ट कंसिडर द फिगर, योर फिगर our figure basically shows a portion of a thin non-conducting infinite sheet of charge with constant positive surface charge density. Now we are discussing the surface charge density. As it is obvious from the figure, the charge is uniformly distributed over the whole surface, and we have to calculate the field at a point P away from the charge sheet. So we have to find the electric field at a point away from the charge sheet. Keep it in mind, यहाँ पर आपके पास आप टोटल शीट के ऊपर चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करने जा रहे, हम एट अ पॉइंट दैट इज़ अवे फ्रॉम द फील्ड शीट है, हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपनी टर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तो बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ द चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी सर्टेन एरिया के अंदर जितना चार्ज मौजूद है वो एरिया जो है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, एज वी कैन सी इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज शीट, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो आउटवर्ड बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम अपनी डायग्राम से बड़ी क्लियरली देख सकते हैं कि दैट इज़ आउटवर्ड्स। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, क्या था आपके पास, योर नेक्स्ट स्टेप वाज यू हैव टू कंसिडर अ गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस किस तरह की होनी चाहिए, हम चाह रहे थे कि ये गॉसियन सरफेस जो है ये हमारे पास मैक्सिमम चार्ज को कवर करे। तो हम क्या करते हैं, हम एक अदद गॉसियन सरफेस जो यहाँ कंसिडर करने चाह रहे हैं, दैट गॉसियन सरफेस इज़ अ सिलेंडर, या फिर अगर इन अदर वर्ड्स हम एग्जांपल लेते हैं तो पिल बॉक्स कहते हैं इसको। अब ये पिल बॉक्स की शेप कैसी होती है, हम सब लोगों ने अपने पास घरों में
जो कैल्शियम की जो होती है टिक्कियाँ होती हैं बेसिकली, जिसको हम इन अदर वर्ड्स जो ऑरेंज कलर की टिक्की होती है कैल्शियम की, उसके जो कवर है वो बेसिकली आपके पास सिमिलर ज्योमेट्री है जो कि हम यहाँ गॉसियन सरफेस एज्यूम करने जा रहे हैं उसके लिए। CAC 1000 के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो जो डिब्बी की शेप आपको नज़र आएगी बेसिकली वही हमारे पास यहाँ पर हमारी गॉसियन सरफेस है। तो अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस की ख़ास बात क्या है कि ये हमारे पास हमारी जो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है इसको पियर्स कर रही है मतलब क्या है, इसके अंदर से पास कर रही है। और ये जब इसके अंदर से पास कर रही है तो आधी गॉसियन सरफेस आपके पास इस शीट की एक साइड पे आ रही है और आधी गॉसियन सरफेस जो है आपके पास इस शीट की दूसरी साइड से गुजर रही है। अब आपने यहाँ पर हमने अपने प्रीवियस फ्लक्स के नॉलेज को रिवाइज करना है और हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स को कैलकुलेट करते हुए हम ये बात दोबारा से अपने माइंड में लेकर आएंगे कि वेयर द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड वेयर द फ्लक्स विल बी मिनिमम। इन ऑर्डर टू रिमेंबर दैट वी हैव टू नोट कि हमारे पास वेक्टर एरिया ए और फ्लक्स के दरमियान हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अपना वेक्टर एरिया की डायरेक्शन बनाएंगे तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यू बनेगी आपके पास, और जो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी आपके पास यही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंड्स पर या कैप्स पर बात करेंगे तो कैप पर वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ये बनेगी। लेकिन अगर हम लोग अपने जो सिलेंड्रिकल रीजन है उसके ऊपर वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो उस वक्त वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आपके पास इससे ऑपोजिट बनेगी। तो अब यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें अपने पास फ्लक्स को, तो फॉर द कैप आपके पास फ्लक्स की वैल्यू जो है बेसिकली एंगल बिटवीन ई डॉट डेल्टा एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 0। और बेसिकली थीटा जो है आपके पास वो आ जाएगा 0। और जब यहाँ थीटा जो है वो 0 आएगा तो ई डॉट ए की जगह आप लिख सकते हैं ई ए। ये हमने ऑलरेडी बात की हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपनी यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए आपके पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। और जब थीटा की वैल्यू 90 आती है तो हमने ये बात एज्यूम की हुई है कि हमारे पास ई डॉट ए वेक्टर्स जो हैं इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर आ जाता है। सो वी कैन से फ्रॉम हेयर कि आपके पास एंड कैप के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो है वो ई ए के बराबर आ जाएगी, और जो आपकी कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर आपके पास वेक्टर फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0 के बराबर। नाउ यहाँ से हम लोग ये बात कर सकते हैं कि आपके पास फ्लक्स जो है फॉर वन फेस अगर हम निकालना चाहते हैं, अब यहाँ पर हमने फ्लक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। हमारे पास ये गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है। अगर आप याद करें तो हमने गॉसेस लॉ किस तरह से लिखा था। गॉसेस लॉ हमारे पास आता है ई एप्सिलॉन हम लोगों के पास गॉसेस लॉ आता है एप्सिलॉन नॉट द इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू के। ऐसे ही है, हम अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में फॉर्म आ रही है। और वो फॉर्म क्या है आपके पास अगर आप देखें तो वो ये है कि इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू। अब क्यू की जगह हमने पिछले एप्लीकेशन में हमने ये बात डिस्कस की है कि हमारे पास क्यू जो है वो हमारे पास बराबर आता है क्यू इज़ इक्वल टू सरफेस चार्ज। हम लोगों ने कहा था लाइन इंटेग्रल, या हमारे पास जो है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी इनटू द हाइट या फिर टोटल लेंथ के। तो यहाँ पर आपके पास हम जब सरफेस चार्ज डेंसिटी का जिक्र करेंगे तो हमारे पास जो चार्ज क्यू है वो चार्ज क्यू बराबर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हमारे पास जो चार्ज आएगा
अब हम बात कर रहे हैं सरफेस की, तो हमारे पास चार्ज जो आएगा वो चार्ज बराबर आएगा सिग्मा इनटू द टोटल एरिया एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर आपके पास ये जो ऊपर इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया है, इस इक्वेशन में आपके पास Q की जगह हम लोग लिख रहे हैं सरफेस इंटेग्रल इनटू एरिया, और बाकी आपके पास एप्सिलॉन नॉट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब क्या करता है, वो कहता है कि चार्ज जो आपके पास फ्लक्स जो आप कैलकुलेट करने जा रहे थे, फ्लक्स को उसने 3 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज़ योर फ्लक्स for the left face of your pillbox or your cylinder. Second is the flux for the curved side of the cylinder. Then third is the flux for your right side of the cylinder. और यहाँ पर आपके पास ये जो लेफ़्ट अभी हमने बात की थी कर्व्ड साइड की, तो इसके लिए फ्लक्स आपके पास आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ पर हमने लेफ़्ट साइड ऑफ द सिलेंडर का जो कैप था उसके लिए हमने बात की थी, और वहाँ हमने कहा था कि हमारा फ्लक्स जो है वो ई ए के बराबर आया था। अब सेम इज़ द पोजीशन फॉर योर राइट साइड। अगर हम बात करें तो जिस तरह आपको यहाँ पर अपनी फील्ड डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं फॉर साइड फर्स्ट साइड, उसी तरह आपके पास सेकंड साइड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास डायरेक्शन है वही आपके पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो एट दैट साइड भी आपके पास वैसे ही फ्लक्स कैलकुलेट होगा, और आपके पास दोनों जो साइड्स हैं दोनों के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू है वो आपके पास बराबर आ जाएगी ई ए के। तो अब आपके पास आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि आपके पास दोनों साइड्स के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो ई ए प्लस ई ए आई है। तो आपके पास टोटल जो फ्लक्स है वो बराबर आ जाएगा 2 ई ए के। और यहाँ से अगर हम लोग अपने पास कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू, तो ये वाली इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ये E की वैल्यू निकल आएगी एट अ पॉइंट अवे फ्रॉम योर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। Now moving on towards our next application, और next application क्या है, spherical shell of charge। स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। अब ये स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को कुछ थोड़ी सी बातें और रिवाइज करनी पड़ेंगी कि अगर आपके पास एक अदद ज्योमेट्री है और एक अदद ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें आपके पास चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कल, तो आपके पास ऐसी ज्योमेट्री को हम एक अदद शेल का नाम देंगे। और देयर वर सर्टेन ऑब्जर्वेशंस मेड फॉर दिस शेल, जिनको शेल थ्योरम्स का दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको शेल थ्योरम्स का नाम दिया गया था, और शेल थ्योरम्स का नाम दिया गया था। कहते हैं कि अब ये जो सारी की सारी आपके पास, इसमें पहला जो शेल थ्योरम था वो ये कहता है आपके पास कि ये जो सारा आपके पास अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस है जो कि एक अदद सर्कुलर शेल की फॉर्म में है, या किसी और रीजन के लिए एक अदद पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करता है। और इसका जो सेकंड जो पोस्टुलेट था, ये जो सेकंड शेल थ्योरम निकाला गया था, सेकंड शेल थ्योरम ये कहता है कि आपके पास कि अगर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है तो आप क्या करें, अगर आप इस चार्ज के अंदर, इस शेल ऑफ चार्ज के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो 0 होगी। अब ये जो दोनों थ्योरम्स हैं, ये दोनों शेल थ्योरम्स हम यहाँ पर अपनी इस एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर स्टडी करेंगे। इन दोनों थ्योरम्स को यहाँ पर प्रूफ भी करेंगे कि ये दोनों थ्योरम्स जो हैं हमारे पास वी कैन बी प्रूव्ड करेक्ट बाय यूजिंग एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ।
by applying in other words we can say we can prove these theorems right by applying Gauss's law on a spherical shell of charge. अब ये spherical shell of charge को अंडरस्टैंड करना है तो हम अपनी ये डायग्राम को देख लेते हैं. अब ये डायग्राम जो है आपके पास बेसिकली दिस रिप्रेजेंट्स 3 सर्कल्स. अब ये 3 सर्कल्स में से जो आपके पास डॉटेड सर्कल है, जो सेंट्रल सर्कल जिसको हम कहेंगे, अगर हम फ्रॉम वेरी आउटसाइड डिस्कस करना शुरू करें तो जो सर्कल नंबर बाहर वाला आपका सर्कल है, दिस इज सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2 एंड दिस इज सर्कल 3. तो ये जो सर्कल 2 है, दिस सर्कल 2 बेसिकली इज योर शेल ऑफ चार्जेस. अब ये जो स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है आपके पास, ये क्या कर रहा है, ये डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आपके पास अलोंग द रेडियस होगी. वो कहता है कि आपके पास, अच्छा अब क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम अपने गॉसेस लॉ की बात करें तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमने अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करना है. सेकंड स्टेप क्या था, हमने अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को नोट डाउन करना है. तो हमारे पास यहाँ पर ये जो शेल ऑफ चार्ज है, ये बेसिकली आपके पास इसका जो रेडियस अगर हम बात करें तो दैट रेडियस इज इक्वल टू कैपिटल आर. अब आपके पास जो शेल ऑफ चार्ज जिसको रिप्रेजेंट किया है Q से, इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R के बराबर है. अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली अगर आप कहें तो ये आपके पास यहाँ से आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगी, ऐसे ही होगा. तो जब ये आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी आपके पास अलोंग द रेडियस, जो आपका रेडियस की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनेंगी. तो ये जो है आपके पास बेसिकली क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई. नेक्स्ट हमने स्टेप क्या करना था, डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिटरमिन्ड. जब आपने डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमिन कर लिया, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर आपको याद हो तो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी थी. अब हम यहाँ पर अपने 2 शेल थ्योरम्स को प्रूव करने चाह रहे हैं. फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता था कि आपके पास जो भी आपके पास शेल ऑफ चार्जेस है या जो भी आपके पास सर्कुलर चार्ज ज्योमेट्री है, वो सर्कुलर चार्ज ज्योमेट्री बिहेव करेगी एज अ पॉइंट चार्ज फॉर अदर कंसेंट्रिक अदर चार्जेस अदर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. तो हम क्या करते हैं, इस चार्ज ज्योमेट्री जो हम लोगों के पास थी उससे बाहर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, और ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस आ गई जिसका रेडियस जो है उसको वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रेडियस जो है वो ग्रेटर है देन द रेडियस ऑफ योर चार्ज ज्योमेट्री, जिसको हमने Q से सर्कल को रिप्रेजेंट किया हुआ है. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, एक तो हो गया फर्स्ट शेल थ्योरम हम जो कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास गॉसियन सरफेस आ गई और इस गॉसियन सरफेस को नाम दे दिया हमने S का. देन क्या करने जा रहे हैं, हम अपना हमने सेकंड शेल थ्योरम भी साथ ही प्रूव करना है. तो सेकंड शेल थ्योरम हमारे पास क्या स्टेटमेंट देता था, कहता था कि किसी भी आपके पास अगर कोई शेल ऑफ चार्जेस है तो उस शेल ऑफ चार्जेस के अंदर इनसाइड जो है आपके पास किसी भी पॉइंट पर अगर आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो फील्ड आपके पास क्या होगी, 0 के बराबर होगी. तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक अदर सेकेंड गॉसियन सरफेस एज्यूम किया, और उस गॉसियन सरफेस को वो कह रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है S1 से. नाउ हम क्या करते हैं, हम अपने पास अपना, आपको अगर याद हो तो सेकंड स्टेप हम अपना फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने गॉसियस लॉ, हमने एक अदर अपनी गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेनी थी, और गॉसियन सरफेस एज्यूम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या था, हमने क्या करना है, हमने फ्लक्स को कैलकुलेट करना है. तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपको याद हो हम क्या करने जा रहे हैं, कंसिडर करते हैं अपना केस फॉर S2. अब S2 के लिए हम लोग अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द फ्लक्स
फॉर द, अगर आप याद करें तो जब हमने कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ का रिलेशन पढ़ा था कि किस तरह हम गॉसेस लॉ की मदद से कूलम्स लॉ निकालते हैं, तो उसमें भी कुछ आपके पास इसी तरह की शेप थी। और उसमें बेसिकली उसमें क्या था, आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक अदद शेल ऑफ चार्जेस है। अब आपके पास ये जो शेल ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको याद हो तो फ्लक्स के लिए हमने रिलेशन क्या लिखा हुआ है, सरफेस इंटेग्रल ई डॉट डी ए। और ई डॉट डी ए जो है, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि हम लोगों के पास फ्लक्स, बेसिकली इसको हम लोग सॉल्व करते हुए लिख सकते हैं, ई डॉट डॉट डी ए इज़ इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा। तो आपके पास यहाँ पर बेसिकली आपको थीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनाऊँ अपनी, तो ये थी हमारे पास अलोंग द रेडियस, इसको ई आर से रिप्रेजेंट करती है आपकी किताब। और अगर हम लोग यहाँ पर अपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाएं, तो वो भी आपके पास ए जो है वो डी ए जो है वो आउटवर्ड्स बनेगी। तो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें इन द सेम डायरेक्शन बन रही हैं, तो यू कैन से थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी बात जो अगर आपको याद हो, वो हमने ये बात की थी कि अगर ये एरिया वेक्टर और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो है, तो यू कैन राइट ई डॉट डी ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर एज ई ई ए, ई डी ए, ई डी ए। तो ये आपके पास ई डी ए के बराबर आ सकता है। और हमने यहाँ से एक और एजम्पशन भी की हुई है कि जो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दीज सर्कल्स, किसी भी पॉइंट पर इस सर्कल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एट द सेम डिस्टेंस मौजूद है। तो जब ये एट द सेम डिस्टेंस मौजूद है, वी कैन से ई इज़ अ कांस्टेंट, ई इज़ कांस्टेंट। तो जब ई आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट इट आउटसाइड द इंटेग्रल। और आपके पास ये जो इंटेग्रल ई डॉट डॉट डी ए वेक्टर के साथ इंटेग्रल था, ये इंटेग्रल आपके पास जो न्यू फॉर्म लेगा वो क्या लेगा, आपके पास ई आउटसाइड द इंटेग्रल आ जाएगा आपके पास, और आपके पास क्या बच जाएगा, डी ए बच जाएगा खाली। तो अब ये जो खाली आपके पास डी ए बचा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपके पास बेसिकली इफ़ यू कैन कैंसिल सरफेस इंटेग्रल विद दिस, आपके पास क्या बच जाएगा हमारा, खाली ई और ये इंटू ए बच जाएगा, ई इंटू ए बच जाएगा। तो अब ए बेसिकली अगर आपको याद हो तो ए इज़ द सरफेस एरिया फॉर दिस सर्कल। और सरफेस एरिया फॉर दिस सर्कल की अगर हम वैल्यू निकालें, तो वो हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपनी फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फ्लक्स जो है हमारे पास, अगर हम बात करें, तो दैट फाई इज़ इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, अब हम क्या करने जा रहे थे, हम बेसिकली कर क्या रहे थे, हमने फ्लक्स निकाल लिया अपनी सरफेस के लिए। अब जब हमने फ्लक्स निकाल लिया, तो अब हम इसके ऊपर क्या करने जाएंगे, अपना गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। और गॉसेस लॉ आपके पास क्या कहता है, गॉसेस लॉ आपके पास कहता है कि आपके पास किसी भी सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट इंटेग्रल ई डॉट डी ए, यहाँ पे सारे वेक्टर्स, और ये बराबर होता है आपके पास क्यू के। तो अगर आप यहाँ से बात करें, तो हमारे पास जो फ्लक्स आ रहा था, अभी हमने फ्लक्स अपना कैलकुलेट किया, और फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स की वैल्यू आई थी आपके पास ई
4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू के बराबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी इक्वेशन को फर्दर अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपकी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, क्यू ई इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब अगर हम अपनी प्रीवियस जो डायग्राम हमने प्रीवियस जो केस कंसिडर किया था, प्रीवियस केस हमने कौन सा कंसिडर किया था, अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज वही वाला जो कूलम्स लॉ और गॉसेस लॉ का कंबाइंड रिलेशन हमने निकाला था उसको अगर हम रिवाइज करें तो उसमें भी तो हमारे पास यही सिमिलर रिजल्ट आया था ना। और उस सिमिलर रिजल्ट में भी तो उस सिमिलर रिजल्ट में अगर आप अपनी जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है उसको रिवाइज करें तो उस एक्सपेरिमेंटल वो डायग्राम कुछ आपके पास इस तरह से थी कि आपके पास सेंटर के अंदर एक चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, और उसके गिर्द आपने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर की थी। तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट आया है जो उस एप्लीकेशन के थ्रू आया था। तो यहाँ से हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास शेल ऑफ चार्ज है, ये शेल ऑफ चार्ज एक अदद पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। दिस प्रूव्स आवर फर्स्ट शेल थ्योरम। अब चलते हैं हम लोग अपने पास अपने सेकंड शेल थ्योरम की तरफ। और सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है, सेकंड शेल थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है तो ये अपने सेंटर पे मौजूद किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट हम अपने पास अपनी जो गॉसियन सरफेस S1 है उसको ज्यूम कर लेते हैं। अब ये जो आपके पास गॉसियन सरफेस S1 है, हमारे पास गॉसेस लॉ को जहन में रखेंगे। गॉसेस लॉ कहता है कि आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने अपनी फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, आपने अपने पास अपनी वैल्यू ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करना है। तो जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स को क्या होना था, अगर आपको याद हो तो फ्लक्स था आपके पास E डॉट डी ए। तो यहाँ पर अगर आप E की बात करें तो आपके पास E यहाँ पर आ रहा है और आपके पास क्या है, डी ए जो है वो आपके पास इनसाइड दिस सर्कल आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करना चाहें फ्लक्स की तो अच्छा, हम यहाँ पर फ्लक्स की बात करना चाहते हैं तो बेसिकली नो फ्लक्स पासेस थ्रू दिस सरफेस, क्योंकि फ्लक्स जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर फ्लक्स की बात, फ्लक्स आपके पास कर सकता है, लेकिन क्या हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि हमारे पास फ्लक्स जो है वो गुजरेगा कहाँ से, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं अलोंग द रेडियस इन द रेडियल डायरेक्शन। जिस तरफ को आपके पास डायरेक्शन ऑफ द रेडियस है उसी तरफ आपका फ्लक्स फ्लो करेगा। हम सेकेंड थ्योरम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली अपना चार्ज एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लक्स विल बी कॉम्प्लिकेटेड इन दिस केस। तो हम पहले क्या करते हैं, अपने पास अपनी चार्ज एनक्लोज को डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ज अगर आप बात करें तो आपके पास इस रीजन के अंदर S1 के अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड नहीं है। जब व्हेन देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड योर गॉसियन सरफेस, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट एनी फ्लक्स फॉर दैट सरफेस। और जब हम उस फ्लक्स सरफेस के लिए फ्लक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं आती उस सरफेस के लिए। सो वी कैन से E इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और जब E इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज मौजूद है और उस स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज के अंदर मौजूद कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आएगी। Now moving on towards the spherical symmetric charge distribution. अभी हमने बात की थी कि अगर हमारे पास क्या हो, एक अदद शेल ऑफ चार्जेस हो। नाउ अब हम डिस्कस करने चाह रहे हैं कि आपके पास एक अदद स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ चार्जेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सिमेट्रिक है और उस चार्ज की जो शेप है वो स्फेरिकल है।
Spherical symmetry charge distribution. In order to understand this, we have to consider a diagram. और हमारी diagram क्या कहती है कि आपके पास यहाँ पर एक अदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही होगी आपको. सेंटर पे ये जो डॉटेड एरिया है, बेसिकली दिस इज़ योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर को अंडरस्टैंड करना है. इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए के अक्रॉस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ बातें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि हमारे पास, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर सकते कि हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर से हर पॉइंट पर आपके पास जो चार्ज है, उस हमारे पास जो बेसिकली जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म है. हमारे पास चार्ज की वैल्यू जो है वो डिफरेंट हो सकती है. इस सर्टेन एरिया के अंदर जो हम लोग चार्ज डेंसिटी निकालेंगे वो हमारे पास आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इस सर्टेन एरिया के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक्सप्लेन कर सकती है. यहाँ पर हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो चार्जेस हैं